صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث پاک تقریباً کوئی 6 7 8 دفعہ آئی ہے. میں یہ حدیث پاک 3 سندوں سے پڑھوں گا. کتنی سندوں سے جی؟ توجہ ہے سب کی جی؟ کتنی سندوں سے؟ ایک حدیث کا نمبر ہے 933. کیا نمبر ہے جی؟ ایک ہے 1014 اور ایک ہے 1021. کتنے نمبر ہو گئے؟ 3 نمبر ہو گئے جی. 933 چوتھی نہیں 933 تو میں نے بلائیں گا 1014 1021. میں جو پڑھوں گا وہ 1021 اور 933 کوشش کروں گا پوری پڑھوں, اور 1000 جو 14 ہیں وہ اس کو ذرا 1-2 جملے لیں گے. اب حدیث پاک پڑھیں جی. ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال اصابت الناس سنۃ علی عہد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوم الجمعۃ قام النبی صلی اللہ تعالی وسلم یوم الجمعۃ یخطب فقام اعرابی فقال یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم هلك المال وجاء العيال فادعوا الله لنا فرفع يديه وما نرى في السماء قزعة فوالذي نفس بيده ما بدا تفار السحاب امثال الجبال ثم لم ينزل عن منبره حتى يتهادر حتى رأيت المطر يتهادر على لحية رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد وبعد الغد حتى جمعة الأخرى فقام ذلك الأعرابي وقال غيره فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تهدم البناء وغرق الأموال فادعوا الله لنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا فما يشير بيده إلى ناحية من سحابه إلا انفرجت لم يجي أحد من ناحية إلا حدث بالجود. سبحان اللہ سبحان اللہ. حدیث پاک پوری ہو گئی ہے. ہوگی کہ نہیں ہوگی سر بھائی؟ ہوگی کہ نہیں؟ کوئی بندے حیران ہوتے حضور میں نے عربی پڑھی ہے انگلش نہیں پڑھی. انگلش مینوں آپ نہیں ہوندی. کیا پڑھی ہے جی؟ حضور کی حدیث پڑھی ہے. اب دوسری سند سنیں. ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء وكان النبي صلى الله عليه وسلم قائما يخطب فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هلكت الاموال وانقطعت السبل فادعوا الله ان يغيثنا فقال رسول الله عليه السلام اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين صلع من بيت ولا دار والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة فطلعت سحابة مثل الطرس فلما توسلت انتشرت ثم مطرت. یہ حدیث پاک کیا ہوگی جی؟ مکمل ہو گئی. اب ایک اور جملہ سنیے. ایک اور اسی حدیث پاک کو دوسری سند سے پیش کیا گیا. میں اس کا ایک جملہ بس لوں گا. ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یخطب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعۃ قائم فقام الناس فصاحوا فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یسقینا ان یسقن اللہ ان یسقینا ان یسقینا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللهم اسقنا اللهم اسقنا مرتين. کتنی ہو گئی؟ کتنی ہو گئی جی؟ 3 ہو گئی ہیں. لکھی ہوئی ہیں جی. ٹھیک ہو گیا. کتنی ہو گئی بھائی؟ نیٹ کا دور ہے. چاچا گوگل اتنے بیٹھا موبائلوں دے وچ آپ نمبر لکھیں حدیث نہ نکلے تو میں ذمہ دار ہوں. اگر آپ سے نہیں نکلتی تو میرے پاس تشریف لے کر آئیں. میں نے پہلے ایک دوست سے کہا کہ پورے مکے والوں کی آبادی سے جس کو کسی قسم کا کوئی معاملہ سوشل میڈیا کی وجہ سے تنگ کر رہا ہے وہ حضور ہمارے پاس آ جائیں. کہاں آ جائیں جی؟ ہم نے پیسے آپ کے لیے خرچ کیے اور وہ 2 3 3.5 لاکھ کتابیں آپ کے لیے لی ہیں. آ جائیں اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے. کیوں جی؟ اب جلدی سے حدیث پاک کو مکمل کرتے ہیں کیونکہ ترجمہ شروع کریں جی. اب آپ کی توجہ بڑی مہربانی بڑی مہربانی بڑی توجہ کے ساتھ آپ بات کو سن رہے ہیں. آپ کی بڑی مہربانی. اب میری طرف دیکھیے. میں نے جو دوسرے 2 سندیں پڑھی ہیں اس کے لفظ میں اب ساتھ ساتھ جوڑوں گا تاکہ بات کلیئر ہو جائے. اس سے پہلے ایک 2 آیات مقدسہ میں ساتھ پڑھوں گا. ٹھیک ہے جی؟ کائنات کا خالق فرماتا ہے اللہ الذی یرسل الرياح فتثير سحابا فيبسط في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله
कायनात का खालिक फरमाता है हवाएं अल्लाह चलाता है। ऊंची बोलिए, हवाएं रब करीम फरमाता है हवाएं अल्लाह चलाता है। ऊंची बोलिए, सब बोलिए जी, सब बोलिए। अल्लाह ताला आप सबके नसीब में पूरा पूरा लंगर करे। कोई बाद में उठकर ये ना कहे कि अद्धा नाम रह गया। ऊंची आवाज से बोलिए, हवाएं कौन चलाता है? ऊंची आवाज से बोलिए। और भाई मुझे पता है, मैं भी मक्कू आने का हूँ, मैं सारे चेहरों को जानता हूँ, कुछ को मैं शायद नहीं जानता, बाकी को मैं जानता हूँ। तो सारी ऊंची आवाज से बोलिए, हवाएं कौन चलाता है? ऊंची बोलिए, हवाएं कौन चलाता है? मैंने कुरान पढ़ा है, हवाएं कौन चलाता है? अब साथ दूसरी मुकद्दसा कायनात का खालिक फरमाता है फसखरना लहु रिहा तजरी बिअमरिही, हवाएं अल्लाह चलाता है। कायनात का खालिक फरमाता है हमने हवाओं को सुलेमान के अंदर में कर दिया है। अगला जुमला बड़ा डाढ़ा, अब जरा दिल पे हाथ रख के सुने, आपकी तौहीद ठीक हो जाए। क्या ठीक हो जाए? भाई पहले तौहीद तो ठीक करो, तौहीद ठीक करो। हवाएं अल्लाह चलाता है और अल्लाह ही फरमाता है। अब हवाएं सुलेमान के अंदर में हो गई, अब हवाएं सुलेमान के हुक्म से चलती हैं। किसके हुक्म से? किसके हुक्म से? आपकी मुस्कुराहट के सदके एक आया मुकद्दसा में और पढ़ने लगा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कायनात का खालिक फरमाता है मेरे प्यारे बंदे हजरत दाऊद का जिक्र करो। इन्ना सख्खरना जिबाल मअहू व युसब्बिहना बिल अशिय्यि वल इब्कार वल इशराक व तैरा महशूरा। कायनात का खालिक फरमाता है सुलेमान के वालिद मोहतरम और मेरे प्यारे बंदे हजरत दाऊद, मैंने पहाड़ क्या, चरिंद परिंद क्या, सबको इनके हुक्म के अंदर कर दिया। समझ आ रही है सबको जी? अब एक दफा मेरे साथ दोहरा ले, फिर मैं आपको नहीं कहूंगा हवाएं कौन चलाता है। ऊंची बोलिए, हवाएं कौन चलाता है? ये अल्लाह ने किसके हुक्म के अंडर में कर दी? बात समझ में आ गई? आप मेरी तरफ देखिए, मस्जिद नबवी शरीफ है और जुमे का दिन है। अल्लाह के पाक नबी जुमा पढ़ा रहे हैं, खड़े होकर खुतबा शाह फरमा रहे हैं। जब अल्लाह के नबी खुतबा फरमा रहे हैं और मस्जिद नबवी बड़ी हुई है तो क्या ख्याल है, सारे सहाब होंगे कि नहीं? ऊंची बोलिए, पहली सदों में कौन कौन बैठा होगा? सिद्दीकी अकबर, फरूक आजम, उस्मान गनी, मौला मुर्तजा बैठे होंगे कि नहीं जी? अब्दुल रहमान, अबू बैदा बिन जर्राह, साद सईद तलहा, सैयदना जुबैर बिन अवाम, अब्दुल्लाह बिन अब्बास, अब्दुल्लाह बिन अमर, बड़े बड़े जिल्लुल कदर सहाबे रसूल। मजमा असहाबे रसूल का है। ऊंची बोलिए, मजमा किसका है? असहाबे रसूल का है। बात पूरी तवज्जो के साथ समझिएगा बाशऊर लोगों, कि अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि हुजूर का जमाना था, असहाबत नास सनतुन अला अहद नबी, जमाना हुजूर का था, कहत पड़ गया। कहत का मतलब ये होता है कि कई देर से बारिश ना हो रही हो, और हालत ये थी, सुन लीजिए, वो जो 3 संदें मैंने पढ़ी, तीनों संतों के जुमले आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अर्ज की गई या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम हलाकतल अमवाल वन कतात सूल कहतल मदर वहमतरत शजर व हलाकतल बहाइम। ये लफ्ज हुजूर की बारगाह में झोली फैलाकर कहे गए, या रसूल अल्लाह कहत पड़ गया, जानवर हलाक हो गए, दरख्त गिर गए, मकान गिर गए, रास्ते बंद हो गए। आप अल्लाह ताला की बारगाह से दुआ करके हमें बारिश ले गई। क्या ले गई? अब वो एक जुमला जो मैंने दूसरी तीसरी सरद का पढ़ा, फक्कामन नासु फसाहू, अनस बिन मालिक फरमाते हैं लोगों ने झोलियां फैलाकर कहा, या रसूल अल्लाह करम कीजिए और बारिश ले दीजिए। मैं अब एक सवाल कर लूं, पूछ लूं जी? ये जो असहाब का मजमा है, ये कुरान पढ़े हुए हैं? बेशक। तौहीद जानते हैं? जानते हैं? तौहीद जानते हैं? क्या कहते? देखो मरना, शेर खुदा बैठे हैं, शहनशाह सदाकत बैठे हैं, शहनशाह अदालत बैठे हैं, और हया का पुतला उस्मान बिन अफान बैठे हैं, ऐसे जिल्लुल कद्र साहब रसूल बैठे हैं। तौहीद जानते हैं? ऊंची बोलिए, तौहीद समझते हैं? कुरान पढ़ते हैं? कुरान जानते हैं?
साहब? हाँ जी, हमें कुरान भी समझ आया है तो सहाब से समझ आया है। हम किसी बद कमरे वाली सरकार से तौहीद नहीं समझेंगे। हमें तौहीद समझ आई है तो मौला मुर्तजा से आई है, सिद्दीक़ अकबर से आई है, शेर खुदा से आई है, फरूक आजम से आई है। हाँ, ओ अल्लाह के बंदो, मुझे बताओ बारिश नहीं हो रही तो किससे मांगनी है? ऊंची बोलिए, सुभान अल्लाह। किससे मांग रही हैं? बारिशें कौन बरसाता है? बारिशें कौन बरसाता है? हवाएं कौन चलाता है? तो जोलियां किसकी बारगाह में फैलानी है? आप क्या समझते हैं मौला मुर्तजा मांगे तो अल्लाह बारिश ना देगा? सिद्दीक़ अकबर जोली फैला के मांगे तो रब बारिश ना देगा? सारे असहाब का मजमा बतलाया जाता है जब शेर खुदा के होते हुए, सिद्दीक़ के होते हुए, फारूक के होते हुए, उस्मान के होते हुए, जब सारे असहाब का मजमा झोलियां नबी की बारगाह में फैला रहे हैं तो उम्मतियों तुम भी झोलियां रसूलुल्लाह की बारगाह में फैलाओ। क्या कहा जी? बारिश ले दें। क्या कहा? आप इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए, आखिरी बंदा मुझे नजर आ रहा है। आप मेरी तरफ तवज्जो कीजिए, मेरी तरफ तवज्जो कीजिए। अनस बिन मालिक फरमाते हैं जब उन्होंने खड़े होकर झोलियां फैलाकर कहा, कहत पड़ गया, कहत पड़ गया, बारिश चाहिए, बारिश चाहिए, बारिश चाहिए, बारिश चाहिए। मेरे मुस्तफा करीम ने अपने हाथों को उठाया, अपने हाथों को उठाया। अनस बिन मालिक फरमाते हैं फवल्लाहि मा नरा फिस समाए मिन सिहाबिन वला कज़ातन। फरमाते अल्लाह की कसम है आसमान बिल्कुल साफ था, ना बादल, ना बादल का टुकड़ा, ना स्या बादल, ना सफेद बादल, दूर दूर तक वमा बैनना व बैन सलइन मिन बैतिन वला दारिन। मस्जिद नबवी और सिरा पहाड़ी जो 2 किलोमीटर दूर थी, हमारे दरमियान में घर नहीं था। दूर दूर तक 2-2, 3-3 किलोमीटर तक आसमान बिल्कुल क्या था जी? ऊंची बोलिए, आसमान बिल्कुल क्या था? ऊंची बोलिए, आसमान क्या था? आसमान क्या था? साफ था। अनस बिन मालिक फरमाते हैं फवल्लाहि, मुझे अपने रब की कसम है, मेरे मुस्तफा करीम के हाथ अभी उठे थे, नीचे नहीं आए थे कि बारिश शुरू हो गई। हाथ अभी नीचे, सुभान अल्लाह, सुभान। बारिश शुरू हो गई। बारिश भला कैसे हुई? अनस बिन मालिक फरमाते हैं आसमान बिल्कुल साफ था। अब अल्लाह के नायब अकबर हुज्जतुल्लाह अलल आलमीन, रब की कुदरतों के मजहर, कायनात के खालिक की वहदानियत की दलील आज़म मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अंडर में कायनात के खालिक ने जमीन और आसमान को किया। जब अल्लाह के नायब ने हाथों को उठाया तो बादल भागना। अनस बिन मालिक फरमाते हैं बादल ऐसे दौड़े जैसे पहाड़ आ रहे हैं। भाई हाथ किसने उठाए हैं? भाई हाथ किसने उठाए हैं? बादल पहाड़ों की तरह दौड़ने। यहां हुजूर ने हाथ उठाए हुए हैं। भाई ओए अल्लाह के बंदो, जो नबी नमाज में दिल में ख्याल करे कायनात का खालिक किबला तब्दील फरमा दे। अभी तो हाथ आए हैं, अभी तो हाथ आए हैं। इधर मेरी तरफ देखिए, ओरिजिनल लफ्ज़ सही बुखारी शरीफ के। अनस बिन मालिक फरमाते हैं मा वदाहा हत्ता सारे सहाबो अमसाल जिबाले, हत्ता सारे सहाबो अमसाल जिबाले। हुजूर ने अपने हाथों को उठाया तो बादल पहाड़ों की तरह दौड़े 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 हमारे बिल्कुल ऊपर आ गए। लम यनजिल अम मिंबरही हत्ता रईतुल मदरा यतहादरु अला लहयत रसूलिल्लाह। अल्लाह की इज्जत की कसम है, अनस बिन मालिक फरमाते हैं मैंने नबी की खूबसूरत और नूरानी दाढ़ी के ऊपर बारिश के कतरे गिरते हुए महसूस कर लिए। बारिश के कतरे गिरने शुरू। अब कुछ कह सकते हैं कि जी ये महकमा मौसमियात की रिपोर्ट सी हैं, कुछ कह सकते हैं कि वैसे ही आ गए थे ऐਵੇਂ नंगदे नंगदे। ना जी ना। अनस बिन मालिक फरमाते फमुतिरना यौमाना ज़ालिका व बदल गदी वल्लदी यली तर्जुमा तल उखरा। जुमे वाला दिन कौन सा दिन होता है?
जुम्मे वाला दिन केड़ा दिन होंदा है? हाँ जुम्मा दे ही होंदा, चलो शुक्र है। बारिश किस दिन हुई? ऊंची बोलिए। आगे क्या आ गया? फिर बारिश रुकी, किन को हूँ जावे जावे छट जावे ना जाए ना भाई ना। किसने बुलाए हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबियों के सरदार ने बुलाए, अल्लाह के नायब ने बुलाए। एक हफ्ता बारिश होती रही भाई, एक हफ्ता जो बारिश हो रही है तो अब अल्लाह ताला से खुद ही कह दो कि बस चले जाए ना जी ना। फिर मजमा लगा, फिर जुमा शुरू हुआ, फिर वो अराबी खड़े हो गए। अब हाथ बांध के अर्ज की हुजूर बस बस मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं, कोई मांगता तो देखे, जोलियां फैलाकर तो देखे, इसका दामन तक हो जाएगा। मेरे नबी की नवाज़िशें बंद नहीं होंगी। एक हफ्ता बयान मेरा मुकम्मल, एक हफ्ता बारिश और मुसलसल मूसलाधार बारिश। अब खड़े होकर अर्ज़ की हुजूर मेहरबानी फरमाओ। फतबस्सम नबी, हुजूर मुस्कुरा दिए। हुजूर ने फरमाया अच्छा हो बस करना है? अर्ज़ की जी हुजूर आप बस करवा दें। अब ये देखिए ऊपर अब वो स्याह बादल हैं, मदीना शरीफ के ऊपर बिल्कुल स्याह बादल, बारिश तेज तेज बरस रही है। अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे अपनी उंगली मार को उठाया और अर्ज़ की अल्लाहुम्मा हवालैना वला अलैना फमा युशीरो बियदिही फमा युशीरो बियदिही। अल्लाह 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 अल्लाह। अनस बिन मालिक फरमाते हैं मैंने अपने नबी की उंगली मुबारक को घूमते हुए देखा। सुभान अल्लाह। जहाँ जहाँ हुजूर की उंगली घूमती गई वहाँ से बादल गायब हो गया, वहाँ से बादल गायब हो गया। और हुजूर ने अर्ज़ की पाक परवरदिगार मदीने के बाहर बार बारिश रहे, अब हमें नहीं चाहिए, अब हमारे ऊपर बारिश नहीं चाहिए। सालल वादी कना तो शहरन। अनस बिन मालिक फरमाते मदीने के बाहर 1 महीना बारिश हुई। कितनी? वलम यजी अहदुन मिन नाहियतिन, कोई दूर दराज चल के आता तो मदीने के अंदर कदम रखता तो बारिश, बाहर जाता तो बारिश क्या था, बाहर बड़ी बारिश हो देंगे तो अंदर बारिश नहीं। ये किसके करम है, ये किसका फैज है, जोलियां किसने बनी हैं? वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, वो अब सबने जोर लगाना है जी। वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस से बरी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशमी मक्की मदनीउल अरबी है, वो मेरा नबी। सीना चौड़ा करें जी, हाथ बंद करना तो कर लें, लेकिन सबकी आवाज आए और मजमा यकजान और एक आवाज होकर बोले वो मेरा नबी। ऊंची आवाज से बोलिए वो मेरे साथ मिल जाइए। किसी की लहजा और किसी की आवाज नीची नहीं होनी चाहिए। वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस से बरी जिसके वसीले से बनी है, वो मक्की मदनी हाशमी मदनीउल अरबी है, वो मेरा नबी है, अहमद है, मुहम्मद है, वही खत्म रसूल। अहमद है, मुहम्मद है, वही खत्म रसूल है, उस पर ही नजर सारे जमाने की नबी है, वो मेरा नबी है। हाथों से चश्मे किसने जारी किए? मेरे नबी ने। चांद को 2 टुकड़े किसने किया? मेरे नबी ने। सूरज को वापस किसने बुलाया? मेरे नबी ने। सबसे ऊंचा झंडा किसका होगा? मेरे नबी का। सबसे ऊंचा मिंबर किसका होगा? मेरे नबी का। लिवाउल हम्द का झंडा किसका? मेरे नबी का। मकामे महमूद किसका? मेरे नबी का। नबियों का सरदार मेरा नबी है, जिसके झंडे के नीचे सारे नबी खड़े होंगे, वो मेरा नबी है। वो कौन है? मेरे नबी हैं। माँ मैं नबी जगह आता हूँ, वमन सिवाओ इल्ला तख्ता लिवाही। जामे तिरमिज़ी में अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरा झंडा इतना ऊंचा होगा कि आदम से लेके ईसा इब्ने मरियम तक सारे नबी मेरे झंडे के नीचे खड़े होंगे। किसके झंडे के
نیچے میرے حضور کے جھنڈے کے نیچے وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے فردوس بنی جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ ہاشمی مکی مدنی عربی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے